Hi students, this is Dipashri ma'am and you are watching Next Level Chemistry. So welcome to today's session where we will be covering IUPAC nomenclature for coordination compounds. Now we have studied about coordination compounds, its constituents, constituting of ligands, counter ions as well as central metal atom. We have also studied about oxidation number, coordination number. We have studied it all. So as we said earlier, we will be now studying IUPAC of coordination compounds. Now in today's session, what we will be considering is or covering is IUPAC considering counter ions, then come the ligands and then comes the metal ions. Now ligands and metal ions together constitute for complex ions, that is coordination sphere. Okay, now you need to remember it all the time that counter ions come in the ionization sphere and complex ions comes in the coordination sphere. Okay, so we will be dividing it in two parts. First we will be learning about counter ions as it's a very short topic, and then we will further go to complex ions part, that is considering ligands as well as central metal atom. Okay, now first of all I will, before starting our lecture, before starting our session, I would like to thank all of you that we have reached subscriber reaching 300. Thank you so much for this love and attention for our videos. So I would also like to thank you students like Nimisha and Anne who have been constantly replying to our videos. How they did like it or not, and their recommendations. Thank you so much. So now coming to today's session, we will be first considering IUPAC for counter ions. Okay, now there are 2 points said. If counter ions are positively charged, they are named first, and if it's negatively charged, they are named last. फॉर एग्जाम्पल, अगर अब हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, काउंटर आयन मतलब कौन सा वाला आयन, जो आयोनाइजेशन स्फीयर में, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है. अगर वो आयन उसे हम कहते हैं काउंटर आयन, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो वो क्या होगा, पहले आएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर, और अगर नेगेटिव होगा तो वो नॉमेनक्लेचर के बाद, जो भी कॉम्प्लेक्स आयन का नॉमेनक्लेचर है उसके बाद आएगा, मतलब सबसे एंड में, IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे एंड में उसका जिक्र आएगा. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज लाइक Na is positively charged and it's an ionization sphere, so we need to write about it at the starting of the IUPAC. और अगर मान लो किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन स्फीयर में Cl आ रहा है या कोई हलाइड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस काउंटर आयन का जिक्र IUPAC नॉमेनक्लेचर में सबसे एंड में करेंगे. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. ओके, so now first example is about Na3Al_F6. Now Al_F6 is in the square bracket, so it comes in coordination sphere, whereas Na3 comes in ionization sphere. Now Na पे concentrate करना है हमें, क्योंकि Na comes in ionization sphere and Na is a counter ion. So now अगर Na counter ion है और वो positively charged है, so we write it at the first. Okay, they are named first, right? So sodium हम लोग ने पहले लिख दिया, and then we write hexafluoroaluminate. Okay, hexafluoroaluminate, and then हम लोग ने रोमन नंबर में एल्यूमिनियम का ये लिख दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो नाउ यू डोंट नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट्स written for inside the square bracket. We need just concentrate on counter ion. Okay, now next example we see for counter ions are negatively charged, they come last. So now PtBr2 NH3 4Br2. अब देखो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, दैट्स ऑल PtBr2 NH3 4, ओके व्हाटएवर, बट स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर है वो है Br2 एंड इट्स ब्रोमाइड आयन. ब्रोमाइड आयंस आर नेगेटिवली चार्ज, सो हम लोग ने वो IUPAC नॉमेनक्लेचर के
लास्ट वाले सेंटेंस में लिखा है, आई मीन जो भी नाम है उसका लास्ट पार्ट विल बी द काउंटर एंड ओनली इफ इट्स नेगेटिवली चार्ज। ओके, नाउ coming to IUPAC considering complex ions, it means that we have ended with counter ions IUPAC। हम लोग का जो भी कंसिडरेशन था काउंटर आयंस को लेके वो खत्म हो चुका है। नाउ वी विल कंसिडर कॉम्प्लेक्स आयंस का IUPAC। नाउ द 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फॉर्मेशन अबाउट, देखो कॉम्प्लेक्स आयंस के बारे में लिखा है तो लिगैंड एंड सेंट्रल मेटल एटम दोनों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन लिगैंड हैज टू बी गिवन फर्स्ट, मतलब जब भी तुम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करोगे फॉर इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट you need to start with the information of ligand. Okay, now then second point is information about central metal atom with its oxidation state is given। मतलब जब भी तुम लोग सेंट्रल मेटल एटम की बात करोगे तुरंत सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया, तुरंत you need to write it oxidation number in bracket। Okay, now for example we have seen AlF6 3-। अभी जस्ट हम लोग ने लिया था एग्जाम्पल Na3AlF6, तो Na3 तो आयोनाइजेशन स्फीयर में था, वो चला गया तो AlF6 के स्क्वायर ब्रैकेट पे चार्ज आया -3। ओके, नाउ वी हैव टेकन इट्स ओनली कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट। तो क्या आया है देखो, अभी हम लोग सिर्फ कॉम्प्लेक्स आयन पे फोकस कर रहे हैं इसीलिए वो पार्ट लिया गया। नाउ एल्यूमिनियम इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड F6 इज लिगैंड। नाउ F6 इज फ्लोराइड, कितने हैं 6, सो हेक्सा फ्लोरो। एल्यूमिनेट 3 आयन। ओके, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज 3, ऑक्सीडेशन नंबर इज 3। ओके, और वो आयनिक स्टेट में है इसीलिए कॉम्प्लेक्स आयन है ना, तो हम लोग ने आगे लिख दिया है आयन। ओके, सिंपल। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज PtBr2NH3 4 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एंड द नेट चार्ज इज 2+। अभी वो क्या है, अभी देखो यहाँ पे Br2NH3 4 आर लिगैंड्स। ओके, तो हम लोग को उनके बारे में इंफॉर्मेशन पहले देनी है। देखो टेट्रामाइन डाइब्रोमो पहले ही बता दिया, एंड देन कम्स द प्लैटिनम 4 आयन। ओके, नाउ डोंट कॉन्सेंट्रेट कि ये ही नाम क्यों आया, कैसे आया, जस्ट सी ओवर हियर कि लिगैंड्स की इंफॉर्मेशन हम लोग ने पहले दी है। ओके, नाउ समथिंग हाईलाइटेड इन द रेड फॉन्ट इज गिवन ओवर देयर। नो स्पेस इज अलाउड बिटवीन लिगैंड नेम। ओके, 2 लिगैंड्स है, 2 लिगैंड्स के बीच में हम लोग को कोई स्पेस नहीं देनी है, ना ही हम लोग को स्पेस देनी है सेंट्रल मेटल के नाम पे, और लिगैंड के नाम में भी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। ओके, ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन इज रिटन इन रोमन नंबर ओनली। कोई भी उधर +3 +4 -4 ऐसे लिख के नहीं आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर है रोमन नंबर में लिख के आओ। फॉर एग्जाम्पल देखो एल्यूमिनेट 3, तो 3 इज III, 4 के लिए हम लोग ने लिखा है 1 I and V, so that's a Roman number। Okay, now let's move forward। ओके, सो अभी हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयंस में भी अंदर आ रहे हैं इन लिगैंड्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव सेड अबाउट लिगैंड्स, वी हैव सेड, ओके, जो आपको पढ़ना ही है और वो ऐसे ही है। ओके, दीज आर रूल्स, नो नीड टू चेंज। ओके, सो नंबर ऑफ लिगैंड्स आर रिटन एज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4। अगर Br2 है तो डाइब्रोमो आएगा, Br3 है तो ट्राइब्रोमो आएगा, Br4 है तो टेट्राब्रोमो आएगा। ओके, नाउ सी ओवर देयर सम एग्जांपल्स आर रिटन CuNH3 4 2+। ओके, तो अभी मैंने हाईलाइट किया हुआ है NH3 को हम लोग ने हाईलाइट किया हुआ है। कितने NH3 है, 4, सो आई विल राइट टेट्रामाइन। ओके, आई विल राइट टेट्रामाइन, फिर जो भी सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे कॉपर है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिया एंड आई रोट इट एज आयन। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ने लिया है निकल Cn, दैट इज साइनाइड 4, नेट चार्ज इज 2-। अभी मेरा लिगैंड कौन सा है यहाँ पे, साइनाइड, सो आई कितना है 4, सो आई एक्सप्रेस इट एज टेट्रासाइनो।
Okay, tetracyanonickelate 2 ion. Okay. So let's move forward. अगर लिगैंड के नाम में ही पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा सब कुछ है तो क्या करें? फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डाइअमाइन. अभी इथिलीन डाइअमाइन इज अ लिगैंड. ओके, इथिलीन डाइअमाइन इज अ लिगैंड, लेकिन इसमें इस लिगैंड में पहले से ही डाई लिख दिया है ना. व्हाट नाउ? ओके, सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. CO, दैट इज कोबाल्ट. EN थ्राइस, दैट इज इथिलीन डाइअमाइन. 3 है. कितने लिगैंड्स है इथिलीन डाइअमाइन? कितने हैं? 3. सो आई राइट इज ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन. देखो उधर लिखा हुआ है बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3 एंड टेट्राकिस फॉर 4. तो 3 है तो हम लोग ने लिखा ट्रिस इथिलीन डाइअमाइन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन इज कॉपर इथिलीन डाइअमाइन 2. नेट चार्ज इज 2+. So what now nomenclature will be like? Bis ethylene diamine. See down. Written there. Bis ethylene diamine copper 2 ion. I hope you're feeling it very, very simple. Yeah? Okay. Please do comment how you feel. Please give your review so that we can make chemistry, this level of chemistry, more easy to understand. Okay? Maybe with some more examples kind of thing. We are waiting. Okay, so next point is अगर एक से ज्यादा लिगैंड्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल 2 लिगैंड्स है, 3 लिगैंड्स है, 4 लिगैंड्स है, हाउ वी गोना डिसाइड कि नाम कैसे लिखे, पहला लिगैंड किसका आएगा? एज सिंपल एज दैट. IUPAC कहता है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर. नाउ अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे भी हम लोग फॉलो करेंगे. देखो एग्जाम्पल में PTNH3 ट्वाइस Cl2 है. अभी यहाँ पे 2 लिगैंड्स है, एक है अमाइन, एक है क्लोराइड. नाउ A एंड C, अमाइन का A एंड क्लोराइड का C, पहले कौन आएगा? ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी अमाइन. सो अमाइन कितने हैं? 2. सो वी राइट एज डाइअमाइन. क्लोराइड कितने हैं? 2. डाइअमाइन डाइक्लोरो, एंड देन वी राइट वॉट एवर द सेंट्रल मेटल एटम इट इज, लाइक हियर इट इज प्लैटिनम 2. ओके, यहाँ पे आयन नहीं लिखना है क्योंकि नेट चार्ज इज 0. ओके, so next example comes is cobalt NO2, that is what? Nitro. 3 है लिगैंड्स नाइट्रो के और NH3 के भी 3 है. ओके, दोनों 3 है, बट नो मैटर व्हाट इट इज, हम लोग को अमाइन और नाइट्रो में से कंसिडर करना है. अमाइन का A है, नाइट्रो का N है, डेफिनेटली A पहले आ रहा है. सो ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट 3. ओके, सिंपल है. Do comment yes or no, right? Okay, so तो यहाँ पे अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि हम लोग को इस पे फोकस नहीं करना है कि वो 2 है, डाइअमाइन और ट्राई नाइट्रो है तो D पहले आएगा. नो वेज. ओके, फोकस ऑन व्हाट द लिगैंड इज. फोकस ऑन व्हाट द लिगैंड इज. अमाइन है, नाइट्रो है, साइनाइड है, क्लोरो है, ब्रोमो है, व्हाट एवर इट इज. लिगैंड के नाम पे फोकस करना है, वो कितने हैं कोई लेना देना नहीं है. जस्ट वी नीड टू राइट द नंबर्स. लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमें उसको कंसिडर नहीं करना है. वी जस्ट नीड टू कंसिडर द लिगैंड्स. ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर लिगैंड. ओके, सो नाउ here is some list considering ligands. Okay, now we have written some common names and the nomenclature of neutral ligands, positive ligands and negative ligands. Negative ligands, neutral ligands and positive ligands हम लोग ने लास्ट वाले सेशन में पार्ट 2 में हम लोग ने हेल्प चार्ट के अंडर दिया था. ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग, मैंने तभी बोला था कि you just there is no need to concentrate on what the name is, how the name is. okay, तो उसका आंसर यहाँ पे है. यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं, यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसका नाम ये है तो उसको ये ही बुलाना है. ओके, देयर इज नो नीड टू थिंक मच मोर. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रल लिगैंड्स, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है तो उसका लिगैंड नेम इन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज टू बी कार्बोनिल. सपोज कार्बन मोनोऑक्साइड 6 है तो इट विल बी हेक्साकार्बोनिल. 2 है तो डाई कार्बोनिल. ओके, वाटर इज कॉल्ड एज एक्वा, अमोनिया इज कॉल्ड एज अमाइन,
please note down the spelling for amine. It's AMMINE. It will not be AMINE as written maximum times. It is AMMINE. Okay. Now next is ethylene diamine. उसे हम इथिलीन डायमाइन ही कहते हैं, बट विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन. ओके, नाउ कमिंग टू पॉजिटिव लिगैंड्स. हाइड्राजीनियम आयन को हम लोग हाइड्राजीनियम कहते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन को हम लोग नाइट्रोसोनियम कहते हैं, और नाइट्रोनियम आयन को हम लोग कहते हैं नाइट्रोनियम. वेरी सिंपल. पॉजिटिव लिगैंड्स आर वेरी सिंपल. पॉजिटिव लिगैंड्स के एग्जाम्पल्स हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं. वी कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगैंड्स. ओके, नाउ फोकस ऑन नेगेटिव लिगैंड्स. हलाइड आयंस अगर रहेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, ओके, तो हम लोग उनको करेंगे हैलिडो. ओके, सपोज क्लोराइड है तो वी कॉल्ड इट एज क्लोरो. ब्रोमाइड है तो सॉरी क्लोराइड आयन है तो वी कॉल इट एज क्लोरिडो. ब्रोमाइड है तो ब्रोमीडो. ओके, और डायरेक्टली क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो. ओके, इट्स ओके. साइनाइड आयन के लिए हम लोग कहेंगे साइनो. नाइट्रो आयन के लिए कहेंगे नाइट्रो. हाइड्रोक्साइड के लिए कहेंगे हाइड्रोक्सो. अमाइड के लिए कहेंगे अमीडो. नाउ हियर AMIDO, नो डबल M. ओके, थायोसाइनेट है तो थायोसाइनेटो. ऑक्सलेट है तो ऑक्सलेटो. ग्लाइसिनेट है तो ग्लाइसिनेटो. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू फोकस ओवर हियर इज नेगेटिव लिगैंड्स में जो एंडिंग होती है नॉमेनक्लेचर की, वो आइदर ओ से होगी और एटो से होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर हलाइड है तो हलाइड में स्पेलिंग क्लोराइड, फ्लोराइड, एंड में क्या आ रहा है IDE, राइट. क्लोराइड का IDE, फ्लोराइड का IDE. नाउ दैट साइनाइड का इट्स IDE. नाउ दैट हैज टू कन्वर्ट इनटू O फॉर्मेट. क्लोराइड का क्लोरो, फ्लोराइड का फ्लोरो, साइनाइड का साइनो. It ends with O factor. Okay, and second point what we need to remember is thiocyanate. You know there is 8 ATE in the end. Oxalate 8 in the end. Glycinate there is 8 in the end. It ends with what? It ends with ato. ATE का ATO से खत्म होता है. For example thiocyanate ends with thiocyaneto. Oxalate ends with oxalato. Okay, I hope you have understood this. Please go back and listen, and you will understand it completely. Okay, so now अब हम लोग ligands खत्म हो चुका है. Now we are focusing on metal ions. Okay, aluminium and हम लोग ने देखा है IUPAC name in anionic complex. Now what we need to remember here is, देखो एनायनिक कॉम्प्लेक्स और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हम लोग ने पहले भी देख लिया है. ओके, व्हाट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो दैट इज वो कॉम्प्लेक्स एन, और नेट चार्ज जो रहेगा कॉम्प्लेक्स एन के ऊपर, अगर वो पॉजिटिव है तो दैट इज कैटायनिक, अगर नेगेटिव है तो एनायनिक. तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयंस हम लोग एज इट इज लिखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इफ इट इज इन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स it has to be written as aluminium only, but if it is in anionic complex we need to write it as aluminate. Okay, we need to write it as aluminate. कोबाल्ट का हो जाएगा कोबाल्टेट, गोल्ड का हो जाएगा ऑरेट, मैग्नीज का हो जाएगा मैग्नेट, प्लैटिनम का हो जाएगा प्लैटिनेट, एंड सो द लिस्ट यू कैन. ओके, तो क्या होना है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हम लोग मेटल्स के आगे क्या लगाते हैं 8, और अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है we write it as it is. Okay, I hope you understood. What I need you to do is take the screenshot of this charts. जो पहले चार्ट गए हैं, जो अभी है, please take the screenshot of this charts. Okay, it's very important and they are very very helpful. Okay, now these are some points to remember जो हम लोग ने पहले के सारे पूरे इतने स्लाइड्स में देखे चलते आ रहे हैं, पूरा वीडियो अभी ख़त्म होने को आ रहा है. सो एक फाइनल लुक पॉइंट्स टू रिमेंबर के लिए, सो दैट वी कैन इन द एंड वी कैन गेट सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो इफ काउंटर आंसर इज पॉजिटिवली चार्ज दे आर नेम फर्स्ट, and if negatively charged they have to be named at last. No space is allowed between ligand names as well as between central metal and
ligand name. Oxidation state of metal has to be written in Roman numbers only. Number of ligands are written as as di for 2, tri for 3, tetra for 4, and that goes on. If the name of the ligand already constitutes for di, tri, then it is written as bis for di, bis for 2, tris for 3, tetrakis for 4. Okay. Now if there are more than one type of ligands, alphabetical order has to be followed. The name of positive ligands in complex ions ends with IUM. Okay, name of the ligands, negative ligands in complex ions need to ends with O or ato. Okay, name of metal in anionic complex ends with 8. If it is cationic complex, keep it as it is. Okay. Now we'll see some ample examples. Know what is the meaning of ample? Enough of examples. You know, after this video, you can nomenclature. You can give the IUPAC names for some complexes. Okay. Now the very first example is PTNH36 in the square bracket, that is our coordination here, and then comes a counter ion Cl4, that is chloride ion. अब ये को counter ion negatively charged है, right? So it comes in the last. Okay, last में है तो हम लोग उसकी बातें अभी नहीं करेंगे. But what is there now? PTNH36. Now PTNH36 में हम लोग को information पहला किसका जाना चाहिए? लिगैंड का, right? So we need to write about amine. So कितने amine है? 6, right? So 6 मतलब हेक्सा अमाइन प्लैटिनम है राइट. बट इज इट कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स? अगर Cl4 को मैं हटा दूं तो मेरा कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स पे नेट चार्ज कौन सा आएगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव. Cl नेगेटिव है ना, तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो कैटायनिक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो माई प्लैटिनम विल बी प्लैटिनम ओनली. ओके, उसके आगे मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया विच यू कैन कैलकुलेट एंड यू नीड टू कैलकुलेट. यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस फॉर ऑक्सीडेशन नंबर. ओके, सो अब ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर सही है गलत है, यू कैन एक्चुअली ट्राई फॉर योर सेल्फ इन योर नोटबुक एंड प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट we were right about this section or not. Okay, obviously we know we are right, but we need answers from you guys. Okay, so PTNH36, so hexaamine platinum 4 chloride. Okay, CONH3 H2O Cl. Oh my god, 3 ligands. We need to follow the alphabetical order. Okay, now the counter ion is again Cl2, मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स कौन सा है? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स. तो हमारा सेंट्रल मेटल का नाम क्या रहेगा? एज इट इज व्हाटएवर इट इज, कोबाल्ट, राइट? सो कोबाल्ट इज गोइंग टू रिमेन कोबाल्ट. अभी पहले इंफॉर्मेशन देंगे हम लोग लिगैंड्स के बारे में. ओ माय गॉड, अमाइन, देन कम्स द वाटर. वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा, राइट? एंड देन Cl को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरो, राइट? और क्लोरिडो इज द परफेक्ट वन. ओके, so CONH3 H2O Cl. अमाइन, एक्वा एंड क्लोरिडो में से सबसे पहले आएगा अमाइन एंड एक्वा. अगेन इट्स ट्राई, लेकिन AM और AQ में AM पहले आएगा. सो अमाइन के बारे में हम लोग पहले लिखेंगे. इट्स अ टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. समझ में आया? ओके, समझ में आएगा? नहीं समझ में आया, गो स्लोली. ओके, रिवाइंड एंड समझ में आएगा. सो वेरी सिंपल, फॉलो द रूल्स, सिंपल हो जाएगा. क्रोमियम है, H2O के 4 मॉलिक्यूल्स है, मतलब वो लिगैंड है. Cl2 एंड C, ब्रैकेट के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, मतलब इट्स अ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, राइट? यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोलेंगे कि वो आयन है. ओके, सो एक्वा और क्लोरिडो में सबसे पहले आएगा एक्वा. सो वी गो फॉर एक्वा एस टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो. क्यों? Cl2 है ना, Cl थोड़ी ना है, Cl2 है, तो विल राइट इट एज डाइक्लोरिडो. टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम. Then comes its oxidation number 3, and at the end we write it as
iron. Okay, then comes example CO, Cn, H2O, En twice. हो En, right, is ethylene diamine. एक है इथिलीन डायमाइन, एक है एक्वा और एक है साइनाइड. सो सबसे पहले क्या आएगा? एक्वा, देन विल बी साइनाइड and then will be ethylene diamine. Okay, so now we'll arrange it as. Again देखो यहाँ पे फोकस करना है cationic complex से. Okay, so now the first will be aqua cyano bis. ethylene diamine कितनी है? 2. So aqua cyano bis ethylene diamine. Then comes the cobalt जिसका oxidation number है 3 and we write it as iron. Okay, then comes FeH2O4 C2O4 twice. देखो अभी वो पूरा कॉम्प्लेक्स ही 2 बार है क्योंकि SO4-2 ना, सो पूरा FeH2O4 C2O4 पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वही 2 बार रिपीट हो गया. ओके, सो वी राइट इट्स नंबर. अभी एक्वा है और ऑक्सलेट आयन है, सो डेफिनेटली एक्वा पहले आएगा. सो टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो आयन. SO4- है ना, तो अपना कॉम्प्लेक्स कैटायनिक हो गया, तो Fe विल बी रिटर्न एज आयन ओनली. टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो आयन 3 सल्फेट. आई होप इट्स वेरी सिंपल, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट विज के. ओके, के, तो अपना के अगर निकलते है तो अपना कॉम्प्लेक्स विल बी एनायनिक कॉम्प्लेक्स. तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में है प्लैटिनम, फिर है उसके लिगैंड 3 क्लोरिडो एंड देन 1 अमाइन. ओके, सो काउंटर आयन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो हम लोग उसको पहले लिखेंगे, दैट इज पोटेशियम. देन कम्स इंफॉर्मेशन अबाउट लिगैंड्स. इन्फॉर्मेशन अबाउट लिगैंड्स में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे एंड द अमाइन विल बी द फर्स्ट वन. सो पोटेशियम amine trichlorido platinate. No, platinate. Why? Anionic complex में we write for metal ions 8 at the end. Okay, platinate 2. Then come the last example, CrNH3OH twice Cl3 2-. Again this is an anionic complex, तो हम लोग को क्रोमियम को क्रोमेट लिखना पड़ेगा. Then we have 3 ligands, so we need to follow the alphabetical order again. So what it is, amine है, hydroxo है and chlorido है. So which will the first one? Amine, of course. So amine कितना है? एक ही है, amine एक है. Then comes the chlorido. So amine, trichlorido, dihydroxo, chromate 3. Okay, ion आगे आएगा because it's in ionic form. Okay, so I hope you have learned about ample examples now. And I hope you will try more of examples now. बहुत सारे बुक्स रेफ़र करो, MCQs सॉल्व करने का ट्राई करो. और अगर आपके पास केमिस्ट्री बुक का PDF रहेगा, फॉर्मेट होगा टेक्स्ट बुक फॉर्मेट, तो फिर आप उसमें से भी कुछ ट्राई करने की कोशिश करो. होपफुली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस. अगर आपको सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, सो वी कैन गिव मोर ऑफ एग्जाम्पल्स टू यू. और अगर आप सॉल्व कर भी पा रहे हो तो भी आप कमेंट कीजिए. वी विल बी वेरी हैप्पी दैट आवर एफर्ट्स आर fruiting. Okay, so now let's end this video session, but before that you need to like, you need to share and you need to subscribe. Okay, what we got to know about this subscription part is सब्सक्राइब करके भी आप तक नोटिफिकेशंस नहीं पहुंचते. सो सब्सक्राइब बटन बेल दबाइए एंड देन देयर कम्स एन बेल बटन which also you need to press. Okay, so subscribe and then press the bell button and then your subscription is complete and you will be notified whenever our video is posted. Okay, so now let's end the video. Bye bye and we will meet some other day. Okay, chalo, bye, have a good day.